السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کا انشاءاللہ آج یہ ہمارا نواں درس رہے گا، جس میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے لحاظ سے بات آپ کے سامنے کر رہے ہیں، اور آپ اس باتوں کو سن بھی رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا آپ لوگ؟ جی، تو سیرت کا جو 8واں درس میں نے آپ کے سامنے آخری کیا تھا، اس میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اس نکاح کے اس باب پر ہم نے سیرت کا 8واں درس ختم کیا تھا، اور یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً چل رہی ہے 51 سال کی عمر۔ کتنے سال کی عمر؟ 51 سال کی عمر ہے۔ اسی دور کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ صدیقہ سے آپ کا نکاح ہوتا ہے، اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ عرب کے اندر ایک عجیب سا ماحول بن گیا تھا آپ کے خلاف، لوگ آپ کے خلاف ناراض ہو گئے تھے، اور اسی وجہ سے آپ کو طائف کا سفر کرنا پڑا۔ پر آپ طائف گئے، وہاں سے بھی آپ کو ناکامی ملی، وہاں پر بھی لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، یہاں تک کہ مکہ کے اندر بھی لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ تو اس کے نتیجے کے اندر جب آپ پریشان ہوئے تو اللہ رب العالمین نے ایک انعام کے طور پر، ایک معجزے کے طور پر آپ کو ایک سفر کروایا، جسے اسراء اور معراج کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اسراء اور معراج۔ سب سے پہلے اسراء اور معراج کہتے کسے ہیں؟ اسراء کہا جاتا ہے آپ کا وہ سفر جو آپ نے مکہ سے بیت المقدس تک کیا اور براق پر بیٹھ کر کیا۔ اسراء کہا جاتا ہے اس سفر کو جو آپ نے مکہ اپنے گھر سے بیت المقدس تک براق کے اوپر بیٹھ کر کیا۔ ٹھیک ہے؟ اور معراج کہا جاتا ہے بیت المقدس سے آسمان تک کا سفر، یعنی بیت المقدس سے پورا 7ویں آسمان تک کا جو آپ کو سفر ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ معراج کہا جاتا ہے۔ اگر قرآن میں ہم اسے تلاش کریں تو اللہ رب العالمین نے 2 صورتوں کے اندر اس سفر کا ذکر کیا ہے، ایک سورہ نجم، ایک سورہ اسراء۔ اللہ رب العالمین نے اسراء اور معراج کا ذکر 2 صورتوں کے اندر کیا ہے، ایک سورۃ النجم اور ایک سورہ اسراء۔ اسراء جو اسراء اور معراج ہم کہہ رہے ہیں، وہی اس کا نام بھی ہے، اس کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اور اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب سب سے پہلا سوال کہ یہ اسراء اور معراج کب ہوئی؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلا سوال اسراء اور معراج کب ہوئی؟ اس سلسلے کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے کہ یہ سفر کب ہوا تھا، کئی اقوال اس سلسلے کے اندر آتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ راجح، سب سے زیادہ صحیح جو نظر آتا ہے کہ آپ کے مکی دور کا سب سے آخری حصہ اسراء اور معراج تھی۔ آپ کے مکی دور کا سب سے آخری حصہ اسراء اور معراج کا سفر تھا، اور اس میں آپ کی عمر لگ بھگ مان لیں تو 50 سے 53 سال کے بیچ میں یہ سفر ہوا، یعنی نبوت کا 11واں سے کون سا سال ہوگا؟ یہ نبوت کا کون سا سال ہوگا؟ 11 سے 13 سال نبوت کے رہے، اس بیچ میں اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ سفر کروایا، جس سفر کو اسراء اور معراج کہا جاتا ہے۔ اب آپ یہاں پر ایک ہیڈنگ ڈال سکتے ہیں کہ اسراء اور معراج اس واقعے کے اندر کیا کیا ہوا، یعنی جب آپ سے کوئی اسراء اور معراج کے بارے میں پوچھے تو آپ اسے ڈیٹیل کے اندر کیا کیا بتائیں گے، تو پوائنٹس کی شکل میں لکھیں گے تو انشاءاللہ بات آپ کے ذہن میں رہ جائے گی، یاد رکھنا بھی آسان ہو جائے گی۔ تو اسراء اور معراج کے سفر کو اگر آپ لکھیں شارٹ کے اندر، کچھ پوائنٹس کے اندر، تو سب سے پہلی چیز جو اسراء اور معراج کے اندر ہوئی وہ تھا شق الصدر، سینے کو چاک کرنا۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کب ہوا تھا آپ کا سینہ چاک؟ جب آپ 4 سال کے تھے، کہاں پر تھے؟ دائی حلیمہ کے پاس تھے، تب جبریل امین آئے، آپ کے سینے کو چاک کیا، دل کو نکالا اور اسے صاف کیا تھا، زمزم سے دھویا تھا۔ پھر اس سفر کے اندر، اس سفر کا آغاز ہوتا ہے اسراء سے، یعنی آپ کے گھر سے آپ کو براق پر بیٹھا کر پہلے بیت المقدس لے جایا گیا، پھر بیت المقدس سے آپ نے اوپر آسمان کا سفر کیا۔ آپ اس سفر پر جب جانے لگے تو سفر پر جانے سے پہلے جبریل امین آپ کے گھر میں آئے اور آپ کا شق الصدر ہوا، یعنی آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، سینے کو چاک کیا گیا، آپ کے دل کو نکالا گیا، اور اس کے اندر سے شیطان کے حصہ جو ہر دل کے اندر ہوتا ہے وہ نکال دیا گیا، اور اسے زمزم سے دھو کر پاکیزہ کر دیا گیا۔ تو اسراء اور معراج میں کیا کیا ہوا؟ پہلا پوائنٹ آپ نے کیا لکھا؟ شق الصدر، سینے کو چاک کرنا۔ اور شق الصدر اگر آپ سے کوئی پوچھے کتنی مرتبہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کتنی مرتبہ چاک کیا گیا، تو کیا جواب دیں گے؟ 3 مرتبہ۔ 3 مرتبہ ہوا تھا۔ کتنی مرتبہ ہوا تھا؟ 3 مرتبہ۔ پہلا بچپن میں،
दूसरा जब आप पर पहली वही आई थी तब, दूसरा जब आप पर पहली वही आई थी तब, और तीसरा इसरा और मेराज के अंदर। ठीक है, शक्कु सदर कितनी मर्तबा हुआ? 3 मर्तबा। पहला बचपन में, दूसरा वही जब आई तब पहली, और तीसरा इसरा और मेराज के सफर में। अब जब ये मेराज का सफर होता है, ऊपर यानी छत की तरफ से जिब्रील अमीन कमरे के अंदर आते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को चाक करते हैं और उसके बाद आपको इस अजीम सफर के लिए तैयार करते हैं कि चलो आपको इस सफर के ऊपर जाना है। तो इस सफर के अंदर क्या क्या हुआ? पहली चीज आपने लिखी, क्या हुआ? शक्कुस सदर हुआ। दूसरे पॉइंट पर इसमें आप लिखिए कि आपको आपके कमरे से बाहर जिब्रील अमीन लेकर आते हैं और आपको बुराक पर लेकर जाते हैं। किस पर लेकर जाते हैं? बुराक पर। बुराक एक जानवर है जो ऊंटनी से यानी ऊंट के साइज से छोटा था और गधे के साइज से बड़ा था। यानी गधे और ऊंट के बीच की साइज का एक जानवर था जिसकी खासियत ये थी कि जहां तक नजर जाती वहां पर उसका पहला कदम पड़ता था। यानी पहला कदम उठाकर जब वो दौड़े तो उसकी जब अपनी इंसानी नजर जहां तक जाती वहां पर उसका दूसरा कदम पड़ता था। तो दूसरा पॉइंट, जिब्रील अमीन आपको कमरे से बाहर लाए और बैतुल मुकद्दस तक का सफर आपने बुराक पर तय किया। बुराक का जिक्र सही बुखारी हदीस नंबर 5576 के अंदर है, 5576 5576। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखा आपने कि आपको कमरे से बाहर लाए, आपको बुराक पर बिठाया और बैतुल मुकद्दस तक का वहां पर आपने सफर तय किया। तीसरा पॉइंट, अब आप जब बैतुल मुकद्दस पहुंचने के बाद सबसे पहले आपने बुराक को एक रस्सी से वहां बांधा जहां पर नबी अपनी सवारियों को बांधा करते थे। क्या किया? जहां पर नबी अपनी सवारी को बांधा करते थे, खूंटा था, उस पर ले जाके अल्लाह के नबी ने किसको बांध दिया? बुराक को बांध दिया। बांधने के बाद रिवायत अलग अलग अल्फाज के साथ आती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस के अंदर गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारे अंबिया इकराम को बरज़ख से वहां पर हाजिर किया और आपने 2 रकात नमाज सबका इमाम बनकर उन्हें अदा करवाई। यानी इससे क्या पता चला? अल्लाह के नबी का मकाम पता चला कि नहीं चला? यानी नबियों ने आपकी इमामत के अंदर नमाज पढ़ी। यानी नबियों और रसूलों में सबसे बड़ा मकाम किसका है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो तीसरा पॉइंट, आप बैतुल मुकद्दस पहुंचे, वहां पर जहां पर सारे नबी अपनी सवारियां बांधा करते थे वहां पर आपने बुराक को बांधा और बांधने के बाद आपने 2 रकात नमाज क्या करी? इमाम बनकर पढ़ाई। कैसे पढ़ाई? इमाम बनकर आपने सबकी नमाज 2 रकात नमाज पढ़वाई। अब उसके बाद चौथे नंबर पर लिखा 3 पॉइंट आपने सब लिख चुके हैं जी? बोलूं चौथा पॉइंट? जी, चौथे पॉइंट में जिब्रील अमीन एक बर्तन के अंदर यानी 2 बर्तन आपके पास लाते हैं, 2 चीजें लेकर आते हैं। एक बर्तन में शराब और एक बर्तन में दूध। क्या लाते हैं? एक में शराब और एक में दूध, दोनों आपको देते हैं कि लो, यानी जो आपको चुनना है चुन लो। आप दूध उठाते हैं, जैसे ही दूध लेते हैं तो जिब्रील अमीन कहते हैं असब तल फितरा, तूने फितरत को चुन लिया। किसको चुन लिया? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फितरी तौर पर इंसान के अंदर ये बात डाली है कि वो दूध को पसंद करता है, उसकी फितरत है, और शराब फितरत में नहीं होती है। शराब फितरत में नहीं होती है, इंसान उसे चुनता है, बुराई की तरफ जाता है। तो ये 2 चीजें पेश की गई। आपने दूध को पसंद किया, दूध को पिया, और कई रिवायात के अंदर मिलता है कि अल्लाह के नबी वसल्लम दूध को बहुत ज्यादा पसंद फरमाते थे, दूध को बहुत ज्यादा पसंद फरमाते थे। तो ये चौथा पॉइंट है, अल्लाह के नबी वसल्लम के पास 2 बर्तनों के अंदर शराब और दूध लाया गया और आपने किस चीज को चुना? दूध को चुना, अल्हम्दुलिल्लाह। 5वीं चीज, अब मेराज का सफर यहां से शुरू होता है। क्या शुरू होता है? मेराज, आराजा या अरुजु होता है चढ़ना। तो आप वहां से डायरेक्ट आसमान की तरफ चढ़ाए गए थे, इसलिए सफर को क्या कहा जाता है? मेराज कहा जाता है। अब जब देखिए, मेरा मकसद यहाँ पर मेराज के सफर के अंदर की डिटेल बताना नहीं है, सीरत पर हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए मैं मुख्तसर में इस बात को करूंगा। तो क्योंकि अगर मैं इसकी डिटेल के अंदर गया तो बहुत सारे हलाल हराम और अहकामात इसके अंदर आते हैं, जिसकी डिटेल में अपने को 2 हफ्ते लग जाएंगे। तो बहरकैफ मेराज का सफर बैतुल मुकद्दस से शुरू होता है। अब आप कहाँ चलते हैं? आसमान की तरफ। कहाँ चलते हैं? आसमान की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आसमान पर आपको हजरत आदम मिलते हैं। कौन मिलते हैं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिलते हैं। जब जिब्रील अमीन इनको लेकर पहले आसमान पर जाते हैं तो जिब्रील अमीन से सवाल करते हैं, कौन है ये? क्या सवाल करते हैं? कौन है ये? तो बताते हैं ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं तो वो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, आप पर सलामती हो, और कहते हैं आप सच्चे नबी हैं, आप सच्चे नबी हैं। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी के दिल के तसल्ली के लिए कितना आला इंतजाम कर रहा है कि पहले तो मोजज़े के तौर पर इसरा और मेराज करवाई और उसके बाद नबियों से आपकी शहादत दिलवाई, ताकि आपको पुख्ता यकीन हो जाए कि इनकार करने वाले चाहे जितना इनकार कर ले, आप क्या हैं, सच्चे नबी हैं। तो पहले आसमान पर कौन मिले, हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिले। फिर आप वहां से आगे बढ़े, दूसरे आसमान पर आपको हजरत ईसा और हजरत यहया मिले, हजरत ईसा और हजरत यहया मिले। दोनों ने भी आप पर सलाम किया, नाम पूछा, और जब आपने नाम बताया तो कहा कि आप सच्चे नबी हैं। तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ मिले, तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिले। उन्होंने भी यही सवाल किया, यही जवाब मिला, आपको सलाम किया और आपकी नबूवत की तस्दीक की। पहले पे हजरत आदम, दूसरे पर हजरत ईसा और यहया, तीसरे पे हजरत यूसुफ। चौथे आसमान की तरफ जब गए तो वहां पर हजरत इदरीस मिले। कौन मिले, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम मिले। उन्होंने भी कहा, यही नाम पूछा, सलाम किया और आपकी नबूवत की तस्दीक की। पांचवें आसमान पर हजरत हारून मिले, पांचवें आसमान पर हजरत हारून मिले। छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिले, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिले। वो सातवें और आखिरी आसमान के ऊपर जब आप गए तो आपको बैतुल मामूर के करीब, सिदरतुल मुंतहा के करीब कौन मिले, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिले। वहां पर आपसे मुलाकात की, आपको सलाम किया, आपसे बातचीत की, और बातचीत करने के बाद आपकी नबूवत की तस्दीक की। इसके बाद आपको वहां से सिदरतुल मुंतहा के पास ले जाया गया। एक झाड़ है जिसे सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है, एंड वाला दरख्त कहा जाता है, सिदरतुल मुंतहा। सिदरतुल मुंतहा, कुरान में भी इसका जिक्र है, सिदरतुल मुंतहा का जिक्र, ये लफ्ज जो है वहां पर भी मौजूद है। तो आप वहां से कहां गए, सिदरतुल मुंतहा तक गए। फिर वहां जाकर आपने बैतुल मामूर को देखा, बैतुल मामूर, बैतुल मामूर। ये एक ऐसा घर है जैसे दुनिया के अंदर काबा है, वैसे सातवें आसमान पर बैतुल मामूर है। इसकी खासियत ये है कि हर दिन 70,000 फरिश्ते इसका तवाफ करते हैं। कितने फरिश्ते तवाफ करते हैं, 70,000 फरिश्ते हर दिन इसका तवाफ करते हैं। और एक बार जो तवाफ कर ले, कयामत तक उसकी बारी दोबारा नहीं आएगी। हर दिन 70,000 फरिश्ते इसका तवाफ करते हैं, और एक बार जो तवाफ कर ले, कयामत तक दोबारा उसकी बारी नहीं आएगी। सोचिए फरिश्ते कितने हैं, फरिश्तों की तादाद कितनी है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये वो मखलूक है जिनके बारे में अल्लाह ताला कहता है कि यफ़अलूना मा युमरून, अल्लाह इन्हें जो हुक्म देता है वो ये करते हैं, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते हैं। बैतुल मामूर तक आप गए, फिर वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपसे कलाम किया, आपसे बातचीत की। इस ज़िम्न के अंदर आप एक पॉइंट और लिख लीजिए, क्या अल्लाह के नबी ने अल्लाह ताला को दुनिया के अंदर देखा था? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा था? इसका जवाब सही बुखारी के अंदर और भी वैसे हदीस की कई किताबों के अंदर वो जुमला नकल है हज़रत आयशा सिद्दीका का। वो कहती हैं कि अगर कोई ये कहता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा तो वो झूठ बोलता है। क्या बोलता है? झूठ बोलता है, क्योंकि दुनिया के अंदर अल्लाह का दीदार नहीं किया जा सकता। ये कयामत के दिन, कयामत के फैसले के बाद जन्नत के अंदर ही मोमिनों को अल्लाह ताला का दीदार होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा? कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे? नहीं देखा। दूसरी चीज, मेराज पर आप जिस्म के साथ गए थे या रूह से आपने किया था? तो जो मेराज है वो जिस्म के साथ हुई थी। कैसे हुई थी? जिस्म के साथ। आपकी रूह, आपका जिस्म पूरा था, आपके साथ था, और आपने मेराज का पूरा सफर अदा किया था। अब आप ऊपर गए, अल्लाह ताला ने आपसे कलाम किया। कलाम करने का छठा पॉइंट आप लिखिए। पॉइंट टू पॉइंट में इसलिए सिर्फ बता रहा हूँ, पॉइंट का मकसद ये नहीं है कि मैंने इस हिस्से के पॉइंट किए हैं, सिर्फ लिखने, समझने और आपके लिए याद रखने में आसान हो जाए इसलिए पॉइंट बना दिए। छठा पॉइंट क्या है? आपने, अल्लाह ताला ने जब आपसे कलाम किया तो आपको 50 वक्त की नमाज फर्ज की। कितने वक्त की नमाज फर्ज की? 50। सही बुखारी हदीस नंबर 3207।
3207 इसमें जिक्र है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 50 वक्त की नमाज फर्ज की गई थी। कितने वक्त की नमाज? 3207। अब 50 वक्त की नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको दी कि जाओ लेकर जाओ कि उम्मत पर 50 वक्त की नमाज फर्ज कर दी गई है। आप नमाज लेकर क्या करते हैं? नीचे आते हैं। कहाँ आते हैं? नीचे आसमान की तरफ आते हैं। हजरत मूसा मिलते हैं, पूछते क्या हुआ भैया, आप ऊपर गए थे क्या? अल्लाह ताला ने क्या बोला? कहा अल्लाह ताला ने 50 वक्त की नमाज फर्ज की है। हजरत मूसा कहते हैं जाओ अल्लाह ताला से तखफीफ की बात करो, कम करने की बात करो, क्योंकि मैं बनी इसराइल को देख कर आया हूं, ये लोग इतने अमल करने वाले नहीं। जाओ क्या करो, अल्लाह ताला से जाकर बात करो, अल्लाह ताला से कम करवा के आओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर जाते हैं, अल्लाह ताला से कहते हैं इलाही मौला रब्बुल आलमीन, ये 50 वक्त की नमाज जरा ज्यादा हो जाएगी, आप इसको कम कर दीजिए। तो अल्लाह कितनी करता है? 40 कर देता है। कितनी कर देता है? 40 कर देता है। फिर आप हजरत मूसा के पास आते हैं, फिर यही जुमला कहते हैं, फिर आप ऊपर जाते हैं, अल्लाह ताला कितनी कर देता है? 30 कर देता है। कितनी कर देता है? करते 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 बात करते हैं, कम कराते आखिर में अल्लाह ताला कितनी नमाज कर देता है? 5 वक्त की नमाज कर देता है। पर 5 वक्त की नमाज करने के बाद अल्लाह ताला, जो मैंने सही बुखारी की रिवायत बताई, अल्लाह ताला कहता है कि इन्नहु ला युबद्दलुल कौलु लदय्या, कि मैंने जो फैसला कर लिया फैसला चेंज नहीं होता है। पर आपकी मोहब्बत, आपकी उम्मत के लिए जो चाहत है, इसको देखते हुए अगर कोई 5 भी पढ़ेगा तो उसे 50 का सवाब इंशाअल्लाह दिया जाएगा, और कोई 5 ना पढ़े तो गुनाह मिलेगा 50 का। अल्लाह ताला की यही तो खासियत है कि नेकियों का अजर बढ़ाता है और गुनाहों का अजाब बढ़ाता नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन। अब सोचिए, इतनी बड़ी फजीलत वाली चीज अगर कोई छोड़ता है तो कितना बड़ा गुनहगार है। आप जानते हैं नमाज के सिलसिले में मैं सिर्फ एक पॉइंट आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ, नमाज की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नमाज के सिलसिले में हमारे पास बहुत ज्यादा कोताही है। दीन का काम कर रहे हैं साहब, सबका खैरात कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, हज कर रहे हैं, उम्रे कर रहे हैं, नमाज नहीं अदा कर रहे हैं। फजर छोड़ने वाले, जोर छोड़ने वाले, असर मगरिब इशा छोड़ने वाले ढेर लगा पड़ा है बेनमाजियों का। और आपकी जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा है क्योंकि आप पूरे घर की जिम्मेदार हो, आप पूरे घर की जिम्मेदार हो। अगर आपका शोहर बेनमाजी तो गुनाहगार आप भी हो जाओगे, बाप बेनमाजी गुनहगार आप भी हो जाओगी, बेटा है, शौहर है, भाई है, सबकी जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको दी। और एक मैं फतवा आपको बताऊं कि अल्लामा इब्ने उसैमीन जो अरब के बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, उनके पास एक औरत अपने 3 बच्चों को लेकर आती है और एक सवाल करती है कि अल्लाह के शेख, एक मुफ्ती साहब, मुझे ये बताइए कि मेरे शौहर नमाज नहीं पढ़ते हैं, क्या मैं उनसे तलाक ले सकती हूँ? क्या सवाल किया? मेरे शौहर नमाज नहीं पढ़ते हैं, क्या मैं उनसे तलाक ले सकती हूँ? जानते हैं शेख ने क्या जवाब दिया? कि तलाक लेने की जरूरत नहीं, तेरा निकाह वैसे ही खत्म हो चुका है, क्योंकि तू मुर्तद के साथ रह रही है, काफिर के साथ रह रही है। किसके साथ रह रही है? और अगर तू इस हालत में बेनमाजी के साथ रह रही है तो तू जिनाकारी कर रही है। तसव्वुर कर रहे हैं आप? कितना बड़ा गुनाह, कितना बड़ा अजाब, अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नाराजगी वाला ये अमल है। और आप जानते हैं कि इस्लाम में किसी अमल के छोड़ने पर अल्लाह के नबी ने किसी को काफिर नहीं कहा सिवाय नमाज के, कि आपने इरशाद फरमाया मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर। अगर किसी ने जानबूझकर एक भी नमाज छोड़ी तो वो क्या हो गया? काफिर हो जाता है। क्या हो जाता है? और अगर इस्लामी हुकूमत के अंदर आप हो तो आप जानते हैं काफिर के साथ, मुर्तद के साथ क्या किया जाता है? अगर बेनमाजी का इंतकाल हो जाए तो उसे गुस्ल नहीं दिया जाता, नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाती, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाता, कहीं भी गड्ढा खोदकर उसको डाल दिया जाता है। तसव्वुर कीजिए अगर हमारे घरों के अंदर ऐसे बेनमाजी या तो हम खुद हैं या हमारे घरों के अंदर हमारे रिश्तेदार हैं, तो वो कितने बड़े गुनाह के ऊपर हैं कि अल्लाह ताला ने रोजा दुनिया के अंदर दिया, हज दुनिया के अंदर दिया, ज़कात दुनिया के अंदर दी, पर नमाज के लिए आपको कहाँ बुलाया? आसमान पर बुलाया, मेराज के अंदर दी। मतलब नमाज की इस्लाम के अंदर कितनी ज्यादा अहमियत है। तो जिस्म के साथ आपने मेराज की, आप मेराज के सफर पर गए। इस सफर के अंदर वैसे तो बहुत सारी डिटेल्स हैं कि आपने कई चीजों को देखा था। आपने जन्नत के दारोगा को देखा था, आपने जहन्नम के दारोगा को देखा था, आपने यतीम का मान खाने वाले का गुनाह देखा था, सूद वाले का गुनाह देखा था, जिनाकार का गुनाह देखा था। पर हमारा मकसद उन डिटेल में जाना नहीं, हमारा मकसद सिर्फ मेराज के सफर को याद रखना है, क्योंकि ये हमारी सीरत का एक हिस्सा है। इसलिए मैंने मुख्तसर के अंदर इस वाक्य को आपके सामने रखा। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान से वापस कहाँ आते हैं? कहाँ आते हैं? बैतुल मुकद्दस, जहां से आपने सफर शुरू किया था, दोबारा कहाँ आते हैं आप? बैतुल मुकद्दस आते हैं। अब उसके बाद जब वापसी आपकी होती है ना, आपको डिटेल में बैतुल मुकद्दस दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है?
पूरी बैतुल मुकद्दस, पूरा वो इलाका डिटेल में दिखाया जाता है। फिर जब वापस आप मक्का की तरफ रास्ते में आते हैं तो आपको काफिला भी दिखाया जाता है कि देखो ये मक्का वालों का काफिला है, इसमें इतने आदमी हैं, इसके साथ ये मामला है और इतने दिनों के बाद ये वापस मक्का पहुंचने वाला है। मकसद क्या था कि जब लोग आपका इनकार करेंगे तो आप दलील के साथ क्या बता पाएंगे, उनको सारी डिटेल बता पाएंगे, दलील के साथ सारी डिटेल बता पाएंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से वापस लौटते हैं, जब मेराज से वापस लौटते हैं, तो पहले आप बैतुल मुकद्दस आते हैं। बैतुल मुकद्दस की सारी डिटेल आपको वहां दिखाई जाती है। डिटेल के बाद आपको रास्ते में एक मक्का वालों का काफिला भी दिखाया जाता है और वहां सब ये पूरा सफर करने के बाद आप कहाँ वापस आते हैं, मक्का वापस आते हैं। कहाँ वापस आते हैं? और ये सारा सफर कितने वक्त में हुआ था? एक ही रात के अंदर। कितने वक्त में? बाज रिवायत में तो ये तक आता है कि आप जो दरवाजा बंद करके गए थे, कुंडी जो हिल रही थी, आप लौटे जब कुंडी दोबारा वैसी हालत में क्या हो रही थी, हिल रही थी। यानी मुख्तसर से वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना बड़ा मुअजिजा करवाया कि आपको बैतुल मुकद्दस का भी सफर करवा दिया और आसमान का भी सफर करवा दिया। अब इसमें आप नीचे ही लिखिए कि बैतुल मुकद्दस के सफर से हमें क्या समझ में आया, या बैतुल मुकद्दस के सफर का, मेराज के सफर का फायदा क्या हासिल हुआ। बैतुल मुकद्दस के सफर का फायदा क्या हुआ? सबसे पहला फायदा अल्लाह के नबी को तसल्ली देना। क्या फायदा था? अल्लाह के नबी को तसल्ली देना कि आप कुफ्फारे मक्का का टेंशन मत लो, ताइफ वालों ने नहीं माना टेंशन मत लो, ये सब कोई मसला नहीं। आपका मकाम देखो कितना बड़ा है कि अल्लाह ने आपको एक रात में क्या कराया, इतना बड़ा सफर कराया कि बैतुल मुकद्दस भी बुला लिया और दोबारा आसमान का भी सफर करवा दिया। इसलिए आपका मकसद क्या था? अल्लाह का तसल्ली देना। क्या देना? तसल्ली देना। दूसरा मकसद दुनिया को बताना कि आप सच्चे नबी हैं। दुनिया को बताना कि आप सच्चे नबी हैं। यानी एक मोजिजा था कि दुनिया को पता चल जाए आप सच्चे नबी हैं। आपने बैतुल मुकद्दस की डिटेल आकर बताई, आपने काफिले की डिटेल आकर बताई, ताकि दुनिया को ये पता चल जाए कि देखो ये ऐसा वैसी बात नहीं, ये तो मोजिजे वाले नबी हैं, सच्चे नबी हैं। तीसरा फायदा ये पता चला कि दूध फितरत है। दूध क्या है? फितरत के अंदर दाखिल है, यानी दूध का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। नबी दूध को पसंद करते थे, हमें दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। उसका चौथा फायदा, नबियों ने आपकी तस्दीक की। सब नबियों ने क्या बोला था आपको कि आप क्या हो, सच्चे नबी हो। तो चौथा फायदा, नबियों ने आपकी तस्दीक की। अब लिख पा रहे हैं पॉइंट? सब लिख पा रहे हैं? क्या भी बाकी है पॉइंट? पहला पॉइंट है आप तसल्ली देना मकसद था। दूसरा फायदा दुनिया को बताना था कि आप सच्चे नबी हैं। तीसरा फायदा दूध फितरत है। चौथा फायदा नबियों ने आपकी तस्दीक की। पांचवा फायदा दुनिया को आपका मकाम बताना। दुनिया को आपका मकाम बताना कि आप नबियों और रसूलों के भी सरदार हैं। नबियों और रसूलों के भी सरदार है। भाई जो इमाम होता है वो सरदार होता है कि नहीं होता है? भाई आज जैसे अपने आकर नमाज पढ़ते तो अपन किसको खड़ा करते? जो सबसे ज्यादा दीनदार हो, सबसे ज्यादा कुरान पढ़ने वाला हो, सबसे ज्यादा अल्लाह वाला हो, उससे हम आगे बढ़ाते हैं। सारे नबियों ने अगर मोहम्मद और रसूलुल्लाह को आगे बढ़ाया आपने इमामत की, मतलब आप नबियों के क्या हैं? सरदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद छठा फायदा नमाज की अहमियत पता चली। नमाज की अहमियत पता चली कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस इबादत को कितना अजीम बनाया है, इस इबादत को कितना अहमियत वाला बनाया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान पर बुलाकर आपको ये इबादत दी। मतलब उम्मत को इसकी कदर करना चाहिए, इसकी कदर करना चाहिए। और हमें जानबूझकर नमाज कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ना खुद छोड़िए ना अपने घर वालों को छोड़ने दीजिए। हिलाइए, डुलाइए, उठाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बेदार होते थे, हज़रत आयशा को उठाते थे, आपको बेदार करते थे, खुद भी नमाज पढ़ते थे, अपने बीवी बच्चों को भी पढ़वाते थे। अगर आपके यहाँ शौहर ना पढ़े तो आपकी जिम्मेदारी, शौहर पढ़ने वाला हो तो उसकी जिम्मेदारी के बीवी बच्चों को भी नमाज अदा करवाए। अब होता क्या है, आप इस सफर से रिटर्न आते हैं। रिटर्न आने के बाद आप मक्का वालों को बताते हैं कि मैंने मेराज का सफर किया, मैंने आसमान का सफर किया, मैंने बैतुल मुकद्दस को देखा, मैंने ऐसा देखा, मैंने रास्ते के अंदर एक काफिला देखा। तो सारे कुफ्फारे मक्का आपका क्या कर देते हैं? इनकार कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सारे कुफ्फारे मक्का आपका इनकार कर देते हैं। जब वो आपका इनकार करते हैं तो क्या इनकार करते हो? बोलते क्या, तुम ऐसी बात कर रहे हो, तुमने बैतुल मुकद्दस देखा, अच्छा बताओ बैतुल मुकद्दस कैसा है, कैसा है? क्या बोलते हैं? बताओ बैतुल मुकद्दस कैसा है? तो इस सिलसिले में सही बुखारी हदीस नंबर 684, 684, सही बुखारी हदीस नंबर 684,
صحیح बुखारी हदीस नंबर 684 के अंदर इसकी डिटेल है कि कुफ्फार मक्का को जब आपने कहा कि मैं मेराज पर गया, मैं आसमान पर गया, मैंने बैतुल मुकद्दस का सफर किया, जब आपने सारी बातें बताई तो वो इनकार करने लगे, हंसने लगे, बोले अच्छा बताओ बैतुल मुकद्दस कैसा है। तो आपके सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक प्रोजेक्टर की तरह दोबारा पिक्चर चलाई और आपने बैतुल मुकद्दस की सारी डिटेल बता दी। यहाँ तक के बताया कि रास्ते में तुम्हारा एक काफिला मैंने देखा, इसके अंदर इतने लोग, इतने ऊंट, इतने लोग हैं और इतने दिन के बाद ये मक्का पहुंचने वाले हैं। जब आपने इतनी यकीनी बात बताई तो उसके बाद क्या आपकी बातों को माना उन्होंने, बल्कि और ज्यादा इनकार करने वाले बन गए, आपका इनकार करने वाले बन गए। क्योंकि जब किसी को नहीं मानना होता है तो क्या करता है, वो हठधर्मी पर उतर आता है। किस पर उतर आता है? और दलीलों का भी क्या कर देता है, वो इनकार कर देता है। पर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर आकर ये बताया कि मैं मेराज पर गया, इस खबर को लोगों को बताया, तो अबू जहल बड़ा खुश हो गया। कौन खुश हो गया? अबू जहल बड़ा खुश हो गया। उसने कहा कि मैं बहुत दिन से मौके का इंतजार कर रहा था कि अबू बकर सिद्दीक जो इन पर ईमान ले आए हैं, सरदार हैं, इतना बड़ा इनका मकाम और मर्तबा है, तो इन्हें वापस कैसे लेकर आऊं। तो अब मुझे मौका मिल गया। इस बार इस नबी ने ऐसी बात की जिसकी तस्दीक तो अबू बकर सिद्दीक भी नहीं करेंगे। क्या करता है? खुशी खुशी कहाँ जाता है? अबू बकर सिद्दीक के घर जाता है। कहाँ जाता है? अबू बकर सिद्दीक के घर जाता है और जाकर ये कहता है कि अबू बकर सुनो, आज तुम्हारे रसूल ने एक ऐसी बात की है कि तुम भी उनका क्या कर दोगे? इनकार कर दोगे। क्या कर दोगे? इनकार कर दोगे। आज तुम भी उनकी बात को नहीं मानोगे। पर अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक इसलिए कहा जाता है, इस वाक़े के बाद इनको सिद्दीक कहा गया कि जब उनसे अबू जहल ने ये कहा कि आज तुम्हारे नबी ने एक ऐसी बात की है कि तुम उनका क्या कर दोगे? इनकार कर दोगे। अबू बकर सिद्दीक ने ये बात सुनने के बाद कहा कि अबू जहल तेरे बोलने के पहले मैं बोलता हूं कि अगर मेरे नबी ने बोला तो सच बोला, अगर मेरे नबी ने बोला तो सच बोला होगा। तो अल्लाह के नबी की तस्दीक इन्होंने की, इसलिए अल्लाह के नबी ने इनको क्या कहा था? तुम कौन हो? सिद्दीक हो। कौन हो? सिद्दीक हो। आपको जो अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है तो वो लक़ब देने वाले कौन थे आपको? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ये लक़ब दिया था, आपको सिद्दीक कहा था। वो सिद्दीक कहने की वजह ये थी कि इन्होंने इस वाक़े की क्या की थी? तस्दीक की थी। क्या की थी? इस वाक़े की तस्दीक की थी। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर दोबारा आते हैं, दावत का काम करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि आपने मक्का के अंदर एक जगह थी जहां पर आप दावत का काम करते थे, एक मौका, एक मौसम आता था। कौन सा मौसम? मैंने पीछे बताया था, माशाअल्लाह, हज का मौसम। कौन सा मौसम? क्योंकि हज के अंदर अरब के सारे कबीले हज करने आया करते थे, तो आप उस वक्त को बड़ा गनीमत जानते थे। आपकी उम्र जब 51 साल की थी, नबूवत का 11वां साल, नबूवत का 11वां साल, आपकी उम्र का कौन सा साल? 51वां। कौन सा साल? 51वां। उसमें आपने सबसे पहली बैत ली थी जिसे बैअतुल उक़बा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैअतुल उक़बा ऊला, पहली बैअत। बैअतुल उक़बा ऊला, ऊला मतलब पहला। बैअतुल उक़बा ऊला लिखा आपने, बैअतुल उक़बा ऊला। आपने ये पहली बैत वहां पर ली थी जिसे बैतुल उक़बा कहा जाता है। 11 नबूवत का 11वां साल था, आपकी उम्र 51 साल थी। आपका काम था लोगों को दावत देना, बताना, दीन पहुंचाना। इत्तेफाक से जब आपने ये बातें की तो मदीना तक आपकी बातें पहुंच गई, मदीना तक लोगों ने इस्लाम कबूल किया। वहां से इस 11वें नबूवत के साल में 12 लोग आते हैं। कितने लोग आते हैं? 12 लोग मदीना से आते हैं और कहते हैं हम आपके हाथ पर क्या करना चाहते हैं? बैअत करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? बैत करना चाहते हैं। तो अल्लाह के नबी ने इन लोगों के हाथ पर बैत की थी। तो बैत यानी इस्लाम की पहली बैत की शर्तें क्या थी? सवाल लिखिए, इस्लाम की पहली बैत की शर्तें क्या थी? यानी आप जब किसी को ये कहते थे कि तुम मुसलमान हो जाओ, तो मुसलमान होने के लिए आप बैत के अंदर क्या शर्तें लिया करते थे? वो शर्तें आपके जहन में रहना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अहमियत वाली बातें हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि इस्लाम का बुनियादी हिस्सा क्या है। तो आपने सबसे पहली जो बैत ली थी, बैत के अंदर सबसे पहली जो शर्त रखी थी वो क्या थी? अल्लाह तुश्रिकू बिल्लाहि शैया, तुम शिर्क ना करना। क्या ना करना? सबसे पहली शर्त क्या थी? तुम शिर्क ना करना। दूसरी शर्त चोरी ना करना, चोरी। तीसरी शर्त जिनाकारी ना करना, क्योंकि अरब के अंदर जिनाकारी आम थी, इसलिए आपने एक पाकीज़ा दीन होने के एतबार से तीसरी शर्त ये लगाई थी कि तुम जिना ना करना। चौथी शर्त अपने बच्चों को कत्ल ना करना, अपने बच्चों को कत्ल
क्योंकि अरब के अंदर दस्तूर था, वो बच्चियों को क्या करते थे, जिंदा दफना दिया करते थे। तो अल्लाह के नबी ने कहा अगर अब तुम मुसलमान हो रहे हो, बैत कर रहे हो, तो क्या करना, अपनी औलाद को कत्ल मत करना। उसके बाद पांचवी चीज, बोहतान तराशी मत करना, यानी किसी पर इल्जाम मत लगाना, क्योंकि अरब के अंदर आम था औरतों पर जिनाकारी के इल्जाम लगाना, बदकारी के इल्जाम लगाना, इधर उधर जाकर एक दूसरे पर इस तरह अंदाजी करना, जो आज हमारे अंदर भी आम है ना, किसी की भी इज्जत को उछाल दो, किसी को भी बुरा भला बोल दो, किसी के बारे में उल्टी सीधी बातें कर दो, ये अरब के अंदर आम था। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम बोहतान तराशी मत करना। और उसके बाद छठी शर्त आपने लगाई कि नेकी के कामों में मेरी नाफरमानी न करना, नेकी के कामों में मेरी नाफरमानी न करना। ये नबूवत का कौन सा साल चल रहा है, 51। आपकी उम्र का 51 और नबूवत का 11वां साल चल रहा है। हम सारी बातों को साल के हिसाब से याद रख रहे हैं ना इंशाअल्लाह जी। तो बैतुल उक़बा उला, सबसे पहली बैत के अंदर 11वें साल में 12 लोग मदीना से आते हैं, अल्लाह के नबी के हाथ पर बैत करते हैं। तो आप बैत की शर्तें ये रखते हैं कि शिरक ना करना, चोरी ना करना, जिनाकारी ना करना, औलाद को कत्ल ना करना, बोहतान तराशी ना करना, और नेकी के कामों में मेरी मुखालिफत ना करना। अब जब ये लोग आपकी बातों पर ईमान ले आते हैं, आपके हाथ पर बैत करते हैं, तो आप पहला इस्लाम का दाई, इस्लाम का सबसे पहला दाई, जिसे दाई बनाकर आपने किसी कौम के अंदर भेजा था, आप मदीना की तरफ मुसाब बिन उमैर को भेजते हैं। किसको भेजते हैं, मुसाब बिन उमैर को भेजते हैं। किसको भेजते हैं, मुसाब बिन उमैर को आप मदीना भेजते हैं कि जाओ और मदीना वालों को इस्लाम की तरफ बुलाओ, मदीना वालों को इस्लाम की तरफ बुलाओ। इनका नाम मुसाब बिन उमैर था। मुसाब बिन उमैर को आपने मदीना की तरफ भेजा और कहा जाओ वहां जाकर दीन फैलाओ, दीन बताओ। ये जाते हैं, मदीना के अंदर पहुंचते हैं, मदीना वालों को दीन की दावत देते हैं। मदीना के अंदर उस वक्त दो बहुत बड़ी बड़ी जो शख्सियत थी, क्योंकि मदीना के अंदर आप लिखें कि दो बड़े कबीले मदीना के अंदर मशहूर थे, दो बड़े कबीले जो मदीना के अंदर उस वक्त मशहूर थे। एक का नाम था औस, एक का नाम था औस और एक का खजरज, खा जाल रा खजरज जी। मदीना के अंदर अल्लाह के नबी की बेअसत से पहले दो मशहूर कबीले थे, एक का नाम औस और दूसरे का खजरज। और इन दोनों के दो सरदार थे। औस के सरदार थे उसैद बिन हुजैर, उसैद बिन हुजैर, नाम लिख पा रहे हैं आप, उसैद बिन हुजैर। और खजरत के सरदार थे हजरत साद इब्न अबी वक्कास। साद इब्न अबी वक्कास बहुत मशहूर सहाबी गुजरे हैं, बहुत मशहूर सहाबी थे, मदीना के अंदर इनका इंतकाल हुआ था। साद इब्न अबी वक्कास कहाँ के सरदार थे, खजरत के। और औस के सरदार कौन थे, उसैद बिन हुजैर। हजरत मुसअब बिन उमैर मदीना के अंदर दावत का काम करते हैं, दावत देने का काम करते हैं। जब इन दोनों को पता चलता है कि कोई आया है मदीना के अंदर दीन की बात कर रहा है, सबसे पहले साद इब्न अबी वक्कास आते हैं, आकर आपकी बात का इनकार करते हैं। कहा कौन सी बात लेकर आए हो। मुसअब बिन उमैर इनके सामने जब कुरान पढ़ते हैं तो पूछते हैं इस्लाम में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस्लाम में आने के लिए क्या करना पड़ेगा। वो कहते हैं गुस्ल करो, अपने आप को पाक करो और कलमा पढ़ लो। साद इब्न अबी वक्कास क्या करते हैं, गुस्ल करके कलमा शहादत पढ़ लेते हैं। और इनके बाद उसैद इब्न हुजैर भी कलमा शहादत पढ़ लेते हैं। ये दोनों ईमान लाते हैं। इन दोनों के ईमान लाने की वजह से मदीना में क्या हो जाता है, इस्लाम फैलने लग जाता है। भाई जब कबीले का सरदार हो जाए तो आवाम को दिक्कत आती है क्या, नहीं आती है। तो ये दोनों सरदार मुसलमान हो जाते हैं। और एक दूसरी चीज आप और देखेंगे कि मक्का के मुकाबले में मदीना के अंदर दीन आसानी से फैला। कैसे फैला था, आसानी से फैला था। मदीना के अंदर दीन फैलाने में दिक्कतें कम आई थी, मक्का के अंदर दिक्कतें ज्यादा आई थी। मदीना के अंदर तकलीफें कम थी, परेशानियां कम थी, तकलीफ देने वाले कम थे, मक्का के अंदर नाराजगी रखने वाले। और आज तक आप देखिए मदीना वालों का मिजाज नरम है और मक्का वालों का मिजाज आज भी क्या होता है, थोड़ा सख्त होता है, थोड़ा सख्त होता है। कुदरती तौर पर ऐसा है, मक्का वालों का मिजाज सख्त और मदीना वालों का मिजाज बहुत ज्यादा नर्म है। तो ये साद इब्न अबी वक्कास, उसैद इब्न हुजैर, जब ये दोनों ईमान ले आते हैं तो इनके ईमान लाने की वजह से मदीना के अंदर ईमान की फिजा चलने लग जाती है। ढेरों लोग इस्लाम कबूल करते हैं, इस्लाम का बोलबाला होने लग जाता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा दे दिया था कि हम दीन का, इस्लाम का मरकज किसको बनाने वाले हैं,
مدینہ کو کس کو بنانے والے ہیں؟ مدینہ کو ہم دین کا مرکز بنانے والے ہیں، کیونکہ وہاں محبت کرنے والے تھے، وہاں انصاری تھے، وہاں سپورٹر تھے، تو آپ نے صحابہ کرام کو وہاں بھیجنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام وہاں پر ایمان لانے لگے، ایک بڑی فوج تیار ہونے لگی، ایک بڑا ساتھ تیار ہونے لگا، جس بیعت کو بیعت کیا کہا جاتا ہے؟ میں نے بھی نام بتایا، بیعت العقبہ اولا، بیعت العقبہ اولا کہا میں نے آپ کو پہلی بیعت، کیونکہ اس کے بعد ہم اگلے درس کے اندر میں ذکر کروں گا ایک دوسری بیعت کا، یہ 12 لوگوں نے کی تھی، اس کے بعد والی 75 لوگوں نے 75 لوگوں نے کی تھی، اس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس کے اندر آئے گا۔ تو آج میں مختصر جو باتیں آپ کے سامنے رکھی، چونکہ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں، سردی بہت زیادہ ہو رہی ہے، مختصر میں بات آپ کے سامنے ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آج میں نے آپ کے سامنے واقعہ کہاں سے شروع کیا؟ اسراء اور معراج سے۔ اس کا ذکر قرآن کی کس صورتوں کے اندر ہے؟ سورہ نجم اور سورہ اسراء۔ کب ہوا تھا معراج کا واقعہ؟ 50 اور 53 کے بیچ میں، بہت زیادہ اختلاف ہے، مکی دور کا یہ آخری واقعہ تھا جو ہوا تھا۔ اب میں نے اس کے بعد پوائنٹ بتائے تھے کہ واقعے میں آپ نے کیا سیکھا یا کیا کیا پتا چلا، آپ کو پوائنٹ بنانے کے لیے کہا تھا۔ پہلا پوائنٹ میں نے بتایا تھا، اس کے اندر شق الصدر ہوا تھا، کتنی مرتبہ ہوا شق الصدر؟ 3 مرتبہ۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ میں نے بتایا، آپ کے گھر سے کس چیز پر لے جایا گیا؟ براق پر۔ کہاں لے جایا گیا؟ بیت المقدس۔ تیسرا پوائنٹ، وہاں آپ نے کیا کیا؟ براق کو باندھا، اور اس کے بعد نبیوں کی امامت کی۔ چوتھا پوائنٹ، جبریل برتن کے اندر 2 چیز لائے، ایک شراب اور ایک دودھ، آپ نے کیا لیا؟ دودھ لیا، ماشاءاللہ۔ 5واں پوائنٹ میں نے بتایا کہ معراج کا جب سفر شروع ہوا تو پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، 5ویں آسمان پر، اور 6ٹھے آسمان پر، اور 7ویں آسمان پر۔ پھر ملنے کے بعد آپ کہاں تک گئے؟ سدرۃ المنتہا تک۔ وہاں جا کر آپ نے اللہ کا گھر دیکھا، کون سا گھر؟ وہاں کتنے فرشتے طواف کرتے ہیں؟ اور ایک بار کر لے تو دوبارہ باری نہیں آتی ہے۔ 6ٹھا پوائنٹ، وہاں برا کر اللہ نے کتنی نماز دی تھی؟ 50۔ پھر واپس گئے کتنی کی اللہ نے؟ اچھا، کیا معراج جسم کے ساتھ ہوئی تھی؟ بالکل، ماشاءاللہ۔ 7واں پوائنٹ، اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے مختصر سا ذکر کیا، اس رات کے کچھ واقعات ہوئے تھے، آپ نے کس کس کو دیکھا تھا، ہم نے اس کی ڈیٹیل کا ذکر نہیں کیا۔ پھر وہاں سے واپس لوٹتے وقت آپ نے کیا دیکھا؟ ڈیٹیل کے اندر بیت المقدس دیکھا، قریش کا ایک قافلہ دیکھا۔ اس کے بعد میں نے بتایا کہ ابوبکر کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ تصدیق کی تھی، ماشاءاللہ۔ اب اس پورے واقعے کا فائدہ کیا تھا؟ پہلا فائدہ تسلی دینا، دوسرا فائدہ، تیسرا فائدہ، چوتھا فائدہ، 5واں فائدہ، 6ٹھا فائدہ۔ اس کے بعد میں نے بتایا بیعت العقبہ اولا، پہلی اسلام کی بیعت کس سن میں ہوئی؟ کہ نبوی کون سا سن تھا وہ؟ 11واں سن تھا۔ کتنے لوگ آئے تھے مدینہ سے؟ 12 لوگ۔ جو آپ نے بیعت لی اس کی شرطیں کیا تھی؟ میری مخالفت نہ کرنا۔ اس کے بعد آپ نے اسلام کا پہلا دائی مدینہ کے اندر بھیجا، کون تھے وہ؟ جب وہاں پر گئے تو 2 مشہور سردار تھے، دونوں کے نام اور دونوں سرداروں کے نام، اور یہ دونوں ایمان لائے۔ ان کے ایمان لانے کے بعد پورے مدینہ کے اندر ایمان کی فضا چلنے لگی، مومنین بڑھنے لگے، اور اسی وجہ سے اس کے 2 سال کے بعد، یعنی آپ کا جو آخری، یعنی مکہ کا آخری سال تھا اور مدینہ کی شروعات ہونے والی تھی، تب ایک بڑی بیعت ہوئی تھی جسے بیعت العقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلا ہمارا درس وہیں سے شروع ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ رب العالمین آپ سب کے علم میں یہاں پر آنے جانے اور بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔